Hello everyone, welcome to your physics class. Today I have taken some selected problems. First I will start from the examples of NCERT. Your example 9.1 on page number 120 is a constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, then what would be the final velocity of the object? Students, इस example को हम देखते हैं. What the things you have given in the question? First, we will write those the values. So here the given values are what actually? You have given the mass of object, which is 5 kilogram, and this the force exerted on this object for the time t is equal to 2 seconds. Okay, and the object starts moving after applying this force, and the initial velocity of the object is given already actually. U is equal to 3 meter per second, and the final velocity is V is equal to 7 meter per second. Now you are going to find out the force in this question. F is equal to what? Students, as you know, the formula of force is F is equal to m into A. Then firstly you will find the acceleration. Acceleration is equal to V minus U upon T, and you have given the values here. Put all the values. V is 7, U is 3, and T is 2. After putting all the values, you get 7 minus 3 upon 2. 7 minus 3 is 4 upon 2, and it becomes 2 meter per second square. This is the acceleration, okay, produced by the force on the object. Now, F is equal to what will be the force actually, and now we know the mass and acceleration both. Okay, so you can easily find out the force. Force is equal to mass into acceleration. Mass is 5 and 4 and acceleration is 2, so the force becomes 10 Newton. Okay, so this is the constant force which is exerted on the object. Now students, in the second part the question is asking you, if the force was applied for a duration of 5 seconds. Okay, if you take the time t is equal to 5 seconds, and force is same actually, this force, now this force is applied for time 5 seconds. So the question is asking you, then find out the final velocity of the object. Then we find the final velocity v. Okay, as we know initial velocity is remains same actually, it is 3 meter per second. Initial velocity as it is rahega. Now the formula to get the final velocity is we use the first equation of motion to calculate this final velocity. V is equal to u plus at. ओके, आप इस फॉर्मूले से फैमिलियर हैं. v is equal to u plus at, और u आपको गिवन है, u गिवन है, ठीक है. a को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं f अपॉन m, मास फोर्स और मास के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं, बिकॉज here the condition is changed because the force is exerted for time 5 seconds. ठीक है. So for this, force is same, force remains same, and mass remains same. So we'll write this acceleration in the form of force and mass and into time. Clear? Now u is 3 plus force is 10 and mass is 5 into t is for time 5 seconds. So t is 5 here. Okay, this 5 is cancelled out by this 5, and you get 10 plus 3 13 meter per second. This is your answer. This is your final velocity. स्टूडेंट्स के दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट में आप फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और सेकंड पार्ट में आप फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं टाइम 5 सेकंड के लिए. ठीक है. इसके बाद हम सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 9.3. आई एम रीडिंग दिस एग्जांपल. A motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kg. Okay friends, so firstly we will write all those things which you have given in the question. Firstly we will write the mass actually. The mass is 1000 kg. It is the mass of motor car. Okay, and the initial velocity of motor car is given 108 km per hour, but because you have given the time in seconds, so you will convert this kilometer meter per hour to meter per second. Okay,
तो आप u को चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करेंगे? व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज किलोमीटर पर आवर वी मल्टीप्लाई बाई 5/18, ओके। और इसका इनवर्स क्या होगा? व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, देन you will have to multiply 18/5, okay. Here we are going to change this kilometer per hour into meter per second, so we will multiply by 5/18. 18 से 108 6 times cancel out हो जाएगा, into 5 it becomes 30 meter per second, okay. Because in question car stops actually, since the car stops, motor car stops actually, okay, after brakes are applied, so the final velocity becomes equals to 0. Clear? And question is asking the find out the force, okay. तो फोर्स आपको यहाँ निकालना है। एक्चुअली फोर्स कैसा होगा? ये रिटार्डिंग फोर्स होगा, क्योंकि मोटर कार फाइनली रेस्ट में आती है, ठीक है, इसलिए जो फोर्स होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, आपको नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा। सो you are going to find out this force which is a retarding force, okay, which will be opposite to the direction of the motion of the motor car. Clear? And the formula of force is F is equal to m into a. Firstly we'll find acceleration v minus u upon t. V is 0 and u is given here 30. V is also given. Final velocity is 0, ठीक है, putting all these values, and time is 4. Clear? And finally you get minus 30/4 and 4 से 30 cancel out करेंगे, 30 आप कट करेंगे तो you get a is equal to minus 7.5 meter per second square. This is the acceleration. Actually it is the retardation. Now find the force that F is equal to m into a. M is mass is 1000 kilogram and acceleration minus 7.5, so you get this force with a negative sign because it is the retarding force, opposing force. Clear? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपसे रिटार्डिंग फोर्स फाइंड कराया है, ओके। इसमें आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार, ठीक है। तो ब्रेक मोटर कार पे कितना फोर्स लगा रहा है एक्चुअली उसको स्टॉप करने के लिए, उसको स्टेशनरी कंडीशन में लाने के लिए, उसको रेस्ट में लाने के लिए, द फोर्स विल बी F is equal to minus 7500 न्यूटन। क्लियर? दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार। क्लियर? तो जब ब्रेक फोर्स अप्लाइड करता है एक्चुअली तो वो नेगेटिव आता है, क्योंकि जो ब्रेक पर जो फोर्स आप लगा रहे हैं एक्चुअली वो मोशन को अपोज करता है, इसलिए वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 9.5 देखिए। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन। देखिए दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल एक्चुअली विच इज मूविंग ऑन ए लॉन्ग टेबल एक्चुअली। तो फर्स्टली वी हैव गिवन द मास ऑफ द बॉल एक्चुअली which is m is equal to 20 ग्राम। इसको हम बाद में कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, ठीक है। एंड u आपको गिवन है स्टूडेंट, देखिए ये यहाँ पर एक्चुअली क्या शो कर रहा है, जो ग्राफ आपको गिवन है क्वेश्चन में, दिस ग्राफ शोइंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एक्चुअली व्हेन एंड इन दिस केस एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा इस केस में, ठीक है। और वैल्यूज क्या गिवन है इसमें, ग्राफ से भी आप फाइंड करेंगे। मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 20 ग्राम, इसको बाद में हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में हमने इसको कन्वर्ट किया है बाद में, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी आपको, बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एक्चुअली एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव गिवन द वेलोसिटी बट इट विल बी इन सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, ओके। सेंटीमीटर पर सेकंड में आपको दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम सेकंड में गिवन है ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर? तो यहाँ पर u कितना है, दिस u इज 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, और t इज 10 सेकंड। तो 10 सेकंड बाद जो बॉल है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है, टाइम एक्सिस पर होती है। तो 10 सेकंड बाद जब बॉल यहाँ टाइम एक्सिस पर होगी तो स्टूडेंट इस टाइम एक्सिस पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी, इट मींस फाइनल वेलोसिटी होगी बॉल की वो 0 हो जाएगी, ठीक है। टाइम एक्सिस पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो बॉल जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तब उस केस में उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 है, इनिशियल आपको 20 दिया है और फोर्स आपको निकालना है इसमें, रिटार्डिंग फोर्स का निकाल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको रिटार्डिंग फोर्स निकालना होगा। तो F is equal to ma से हम निकालेंगे, a is equal to v minus u upon t से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो v is 0 and u is given 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आंसर आपका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो वैल्यूज आपने एज इट इज पुट की है यहाँ, तो 0 minus 20 minus 20 upon 10 it becomes minus 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। एमपीएस सिस्टम में हम इसको कन्वर्ट करेंगे सीजीएस से, तो इट बिकम्स, जब हम इसको सीजीएस से एमपीएस में करेंगे तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं,
क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वलेंट हो जाएगा, 1/100 मीटर के इक्वलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, इस वैल्यू को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे इट बिकम्स -0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंड मास यू हैव गिवन इन ग्राम एंड आल्सो कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। एंड यू नो स्टूडेंट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होगा 1000 ग्राम, ठीक है। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है आपको इसको 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, 0.020 किलोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स आपके लिए इजी हो गया, सिस्टम्स एक ही सिस्टम में आपने सब सारी वैल्यूज को कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। नाउ यू कैन फाइंड आउट F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज व्हाट, मास इज दिस वन 0.020 इनटू एक्सेलरेशन, आपने यहाँ इसको कैलकुलेट किया है, हियर इट इज -0.02, clear, this is your acceleration. And finally force is what, the force is -0.0004 newton. This is your final answer. Actually this is the friction force exerted by the table on the ball, clear, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बॉल के मोशन को अपोज करता है, तो यहाँ पर जो फोर्स आपको मिलेगा विद नेगेटिव साइन होगा बिकॉज इट इज ए रिटार्डिंग फोर्स, इट इज द अपोजिंग फोर्स एक्चुअली, क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं 9.6 पर। तो व्हाट इज द 9.6 एक्चुअली, एग्जांपल 9.6 इज ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 किलोग्राम, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पिस्टल का वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि जब आप देखेंगे फायरिंग के टाइम में क्या होगा, पिस्टल का जो मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, पिस्टल मूव्स अलोंग, ओके, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बुलेट एक्चुअली व्हेन यू फायर बाय यूजिंग दिस पिस्टल एक्चुअली। तो हियर मैंने यहाँ इसका डायग्राम दिया है, दिस इज बिफोर फायरिंग। फायरिंग से पहले एक्चुअली आप देखेंगे पिस्टल और बुलेट दोनों ही रेस्ट में होंगे, ठीक है, बुलेट इसके अंदर कहीं है, तो बुलेट और पिस्टल जो है वो दोनों ही रेस्ट में होंगे, क्लियर। लेकिन फायरिंग, आफ्टर फायरिंग व्हाट यू सी द बुलेट गोज अलोंग दिस डायरेक्शन एंड पिस्टल गोज टुवर्ड्स बैक एक्चुअली, ओके, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट, तो बैक डायरेक्शन में मूव करती है पिस्टल, इसको कहते हैं रिकॉइल ऑफ पिस्टल एक्चुअली। तो रिकॉइल वेलोसिटी को हमने जस्ट v मान लिया, v को आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन को। तो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ final velocity of the pistol. So here in the question you have given mass of bullet, it is m1 is equal to 20 gram, okay, convert it into kilogram, it becomes 0.02 kilogram, clear, we divide by 1000। इस तरह से mass of pistol given है आपको m2 is equal to 2 kilogram, okay, velocity of bullet given है v1 is equal to 150 meter per second, velocity of pistol आपको given है, velocity of pistol आपको फाइंड करना है, ठीक है, v आपको फाइंड करना है, तो v2 is equal to v डायग्राम में दिया हुआ एक्चुअली v, सो वी हैव टेकन दिस v2 is equal to v is equal to what, ओके। तो स्टूडेंट्स इसमें हम कंजर्वेशन लॉ का यूज करेंगे। कंजर्वेशन मोमेंटम मैंने आपको पढ़ाया था, कोलाइजन के केस में पढ़ाया था, बिफोर कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन मोमेंटम सेम रहता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ हम देखेंगे बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम होगा वो दोनों का सेम रहेगा, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर फायरिंग, ओके, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। तो बाय कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम this m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, clear। तो this is the sum of momentum before firing। m1 u1 किसका मोमेंटम है, बुलेट का है, और m2 u2 किसका मोमेंटम है, पिस्टल का मोमेंटम है, ठीक है, दोनों का सम ये है बिफोर फायरिंग, और आफ्टर फायरिंग ये दोनों का सम होगा m1 v1 इट इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड m2 v2 इट इज द मोमेंटम ऑफ पिस्टल, ठीक है। तो बिफोर फायरिंग बिकॉज बोथ आर इन रेस्ट, सो u1 u2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। जब आप u1 u2 को 0 पुट करोगे इसमें तो ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू m1 v1, m1 इज व्हाट, m1 इज गिवन यू 0.02 इनटू v1 इज 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस तरह से m2 का वैल्यू कितना दिया है 2 किलोग्राम और v2 इज v हियर, सी, ठीक। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v हियर, सो इट स्पेंड्स दिस बिकम्स 2v, 3 को इधर लेके जाएंगे तो 2v is equal to -3 हो जाएगा, ठीक है, अनदर साइड लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा,
and v is equal to हो जाएगा -3/2 and finally you get -1.5 meter per second. This is the velocity of pistol, recoil of pistol. Clear? And why it is why the negative sign comes actually? This negative sign shows the direction of moving pistol will be just opposite to the direction of the bullet. ठीक है, फायरिंग के बाद में क्या होगा, दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे. बुलेट इस डायरेक्शन में जाएगा तो पिस्टल इस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, तो इसलिए पिस्टल का जो वेलोसिटी आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आता है, क्योंकि यहाँ पर बुलेट का वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी आपने लिया है, ठीक है, उसको आपने कितना लिया है, फाइनल वेलोसिटी खैर बुलेट का उसका गिवन है आपको v2, where is v2 actually, where is v1, this is the final velocity of bullet 150. ठीक है, this is with a positive sign, so the velocity of pistol will comes with a negative sign. Clear? Okay student, these are the examples. Now I will discuss about some exercise problems actually. Okay students, I have selected some questions from your exercise of chapter Force and Laws of Motion. First I will read the question. Your question number 5. A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find the acceleration. Okay, इसमें हमें क्या निकालना है, एक तो acceleration निकालना होगा और दूसरा है find the force acting on it if its mass is 7 tons. इसमें given है 1 ton is equal to 1000 kilogram. So students, first of all you will write the given values here. So you have given the mass of the truck actually, which is 7 tons. Okay, a 1 ton is equal to 1000 kilogram. So m mass becomes 7 into 1000 is equal to 7000 kilogram. Clear? Because the truck starts from rest, so your initial velocity is given 0. This is your initial velocity. And it travels a distance of 400 meter. S is equal to 400 meter and it takes time 20 seconds. Now find out A and F. From this formula, S is equal to, from the equations, second equation of motion, S is equal to plus half AD square. You have given distance 400, you have given initial velocity 0, time plus half, you are going to find out acceleration and time is given 20. Clear? So it becomes 400 is equal to half, it becomes 0. ये वाला term 0 हो जाएगा, ठीक है? And half in this term you get half into 20 square is 400 into A acceleration. 400 cancel out हो गया, आपको A मिलेगा, A is equal to 2 मीटर पर सेकंड. 2 इधर आ जाएगा, A is equal to 2 मीटर पर सेकंड. ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है. अब इसे फोर्स, आप फोर्स निकाल सकते हैं. F is equal to mass into acceleration. Mass is given 7000 किलोग्राम, सॉरी 7000 किलोग्राम into acceleration is 2, जो आपने अभी कैलकुलेट किया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो फाइनली द फोर्स becomes equals to 14000 न्यूटन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6. A stone of 1 kilogram is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको निकालना है. स्टोन और आइस के जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो व्हाट यू हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन, यू हैव गिवन द मास ऑफ द स्टोन व्हिच इज 1 किलोग्राम. You have given its initial velocity which is 20 meter per second, and finally stone comes into rest, so final velocity becomes 0 and it covers 50 meter distance. Okay, now you are going to find out acceleration and force, retarding force. Now using equations, third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as. From this equation you find acceleration, because you have not given the time actually. So जब आपको टाइम नहीं गिवन होगा तो अब इस केस में आप इस इक्वेशन का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्टेंस गिवन है, टाइम नहीं गिवन है, तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं. अगर आपको टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे. ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा आप सिंपलीफाई कर लेते हैं. a इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s. v इज बिकॉज v इज 0 एंड u इज 20 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 इंटू s गिवन है आपको 50 मीटर, सो 2 इंटू 50. ओके, एंड 20 स्क्वायर बिकम्स 400 माइनस का आएगा अपॉन 2 into 50 is 100, cancel out होके -4 meter per second square, it is the acceleration. Okay, now you can easily find out the force of friction. F is equal to m into A, mass is 1 kilogram, clear, and acceleration you have got it here -4, and finally you get -4 Newton. This is a retarding force, actually opposing force, friction force आपने यहाँ निकाला है. This is the friction force in between the
contact surface of stone and ice. Clear? Now come to the next question. Question number 7. A 8,000 किलोग्राम इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स. ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर आप देखेंगे इसका डायग्राम बनाया है. इंजन है जो कि 5 वैगन्स को पुल कर रहा है. ठीक है, तो पुलिंग डायरेक्शन ये दे रखा है. ईच ऑफ 2,000 किलोग्राम along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate. These are 3 actually questions here in this question. First A, B, C आपको तीनों फाइंड करना है. तो फर्स्टली स्टूडेंट्स, व्हाट द थिंग्स वी हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन, वी हैव गिवन द मास. एक्चुअली इस पूरे सिस्टम का हम टोटल मास निकालेंगे. ठीक है, इंजन का मास गिवन है आपको 8,000 गिवन है एंड देयर आर 5 वैगन्स, ईच वैगन हैविंग 2,000 किलोग्राम मास. सो द टोटल मास ऑफ दिस complete system becomes equals to what? 18,000, because 8,000 is the mass of the engine plus 5 into, because there are 5 wagons and each wagon having 2,000 kilogram mass. So we will multiply by 5 to this 2,000 and we add this value to this 8,000 and finally we get 18,000 kilogram. This is the whole mass actually. And you have given the force which is exerted by the engine on all the wagons actually, which is 40,000 Newton, and this is the force of friction 5,000 Newton which is exerted by the track on the engine. Clear? Now actually we will find, firstly we will find the, इसमें क्वेश्चन भी किया गया है फर्स्ट में, the net accelerating force. Accelerating force वो फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में हेल्प कर रहा है एक्चुअली. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो अपोज करेगा ना 5,000 फोर्स. टोटल फोर्स इंजन कितना लगा रहा है? इतना लगा रहा है. इसका 5,000 न्यूटन फोर्स से ट्रैक ने इसका अपोज किया, तो जो रिमेनिंग फोर्स होगा, ठीक है, वो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर मूविंग द ट्रेन एक्चुअली, मूविंग द वैगन्स एक्चुअली. ठीक है, तो फाइनली यू विल फाइंड हियर इन द फर्स्ट पॉइंट ए द एक्सेलरेटिंग फोर्स F is equal to F minus FF, फ्रिक्शन फोर्स है. ठीक है, तो इस F जो किसने लगाया? इंजन ने जो फोर्स लगाया है. ठीक है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय इंजन एक्चुअली. तो F इंजन में से आपको निकालना होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, तो फाइनली यू गेट 35,000 न्यूटन. ये रिमेनिंग फोर्स होगा विच विल बी द रेस्पॉन्सिबल एक्चुअली फॉर मूविंग दिस होल सिस्टम. क्लियर? फॉर पुलिंग दिस सिस्टम. नाउ इन द सेकंड पार्ट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. एक्सेलरेशन निकालना होगा आपको, तो आपको पूरे सिस्टम का मास लेना है और ठीक है, और फोर्स आपको लेना होगा. इस पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स तो इंजन ही लगा रहा है ना यहाँ पर. ठीक है, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास. द फोर्स कितना है? जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है 35,000 है. जो एक्सेलरेटिंग फोर्स की हम यहाँ बात करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स 35,000 होगा. ठीक है, अपॉन व्हाट इज द होल मास ऑफ दिस सिस्टम? दिस 18,000. ठीक है, तो आप यहाँ से फाइनली ये तीनों जीरोस इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी. 18 से 35 को डिवाइड करेंगे तो यू गेट दिस वैल्यू 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये कैलकुलेट करके देखिए आप. ठीक है, आपको मिलता है. उसके बाद में सी वाले पार्ट में आप देखिएगा, C द क्वेश्चन इज आस्किंग यू द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2. स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. इसमें एक्चुअली आपको निकालना है कि जो वैगन 1 है वो वैगन 2 पर कितना फोर्स लगा रहा है एक्चुअली. तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो वैगन 1 फोर्स लगा रहा है एक्चुअली वो पूरे इस सिस्टम पे फोर्स लगा रहा है, ना कि ओनली ऑन 2. जितना फोर्स 2 पर होगा उतना पूरे सिस्टम पर भी होगा एक्चुअली. क्लियर? क्योंकि वैगन 1 इज कनेक्टेड टू दिस इंजन और इंजन इज पुलिंग एक्चुअली दिस होल सिस्टम. ठीक है, तो इंजन ने वैगन 1 पे फोर्स लगाया, तो हम एक्चुअली एक्सक्लूड करेंगे वैगन 1 को, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सिस्टम, बाय दिस पार्ट, ओके, ऑन दिस पार्ट. क्लियर? यानी कि ये पार्ट की बात करें आप या सिर्फ वैगन 1 की बात करें. ठीक है, वो इस पार्ट पर कितना फोर्स लगा रहा है वो आपको निकालना है एक्चुअली. ठीक है, तो जो फोर्स आप एक्चुअली क्वेश्चन में तो आपसे पूछा गया है कि वैगन 1 ने वैगन 2 पर कितना फोर्स लगाया. ठीक है, तो वैगन 1 जितना वैगन 2 पर लगाएगा उतना ही फोर्स वो पूरे सिस्टम पे भी लग रहा है. क्लियर? क्योंकि ये वाला पार्ट एक्चुअली इस पूरे सिस्टम को पुल कर रहा है. इंजन इस पूरे पार्ट को, इस सभी वैगन्स को पुल कर रहा है. ठीक है, और अगर आप इसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो इस पूरे के पूरे होल पार्ट को पुल कर रहा है. ठीक है, इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है. तो एक्चुअली जो फोर्स लग रहा है, इस पर जो फोर्स लगेगा
वो डिपेंड करेगा इस पूरे सिस्टम के मास पर डिपेंड करेगा, नॉट ओनली द मास ऑफ द सेकंड वैगन, एक्चुअली पूरे होल सिस्टम पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द मास ऑफ 4 वैगन्स एक्चुअली एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट वैगन। ओके, तो it becomes 4 into 2000, it becomes 8000 kilogram. Clear? And we know the acceleration which is equals to 1.944 meter per second square. Now force of wagon 1 on wagon 2 will be equals to mass into acceleration. Mass is 8000 into 1.944 and you get 15,000 okay 552. तो ये आपको आंसर मिलता है इसका 15,552 न्यूटन। दिस इज द force exerted by wagon 1 on wagon 2 or on whole system. Clear? This one. Now student, question number 8 पर हम आते हैं। What is the question number 8? An automobile vehicle has a mass of 1500 kilogram. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? तो आपको व्हीकल का मास दिया हुआ है और व्हीकल और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपको फाइंड करना है सिंपली, जबकि आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन भी गिवन है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं इजीली, फोर्स भी दे रखा है, मास भी दे रखा है और एक्सेलरेशन भी गिवन है। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यू हैव गिवन मास 1500 किलोग्राम एंड यू हैव गिवन द एक्सेलरेशन। ठीक है, ये रिटार्डेशन होगा, सो यू विल टेक विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन एक्चुअली वो मोशन को अपोज कर रहा है, रिटार्डेशन है, सो नेगेटिव साइन के साथ आप लेंगे इसको और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। फाइनली जो आपका जो है इसमें ऑटोमोबाइल है, जो व्हीकल है वो स्टॉप हो रहा है फाइनली, सो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यहाँ पर फोर्स आप निकालेंगे यहाँ, तो फोर्स का फार्मूला एज यू नो F इज इक्वल टू m into a, मास इज गिवन 1500 एंड एक्सेलरेशन इज गिवन -1.7। ठीक है, माइनस साइन के साथ आपको इसको पुट करना है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2550 एक्चुअली। ठीक है, 2550 न्यूटन। तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत क्वेश्चन इजी था एक्चुअली, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन से इसमें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको बस वाला पार्ट आपको समझना है कि वैगन 1 वैगन 2 पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा एक्चुअली वो पूरे मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, देखिए इसमें यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो फोर्स हो रहा है कि वैगन 1 इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तब उस केस में आपको वैगन 1 का मास लेना होगा। समझ में आ रहा है? जब वैगन 1 इस पर फोर्स लगाएगा तब उस केस में आपको मास इसका लेना होगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली, जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, ये पुलिंग फोर्स है। ठीक है, जो वैगन 1 है या इंजन ये वाला सिस्टम जो है वो इस वाले पार्ट को वो पुल कर रहा है एक्चुअली। जब इसको पुल करेगा तो ये पूरे मास को पुल कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा ओके फॉर होल मास एक्चुअली, फॉर होल मास ऑफ दिस पार्ट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. What is your question 11? Two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite directions. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? Student, you have given two objects which having the same mass. यहाँ पर 2 objects हैं आपको given है जिनके दोनों के मास सेम है 1.5 किलोग्राम है और दोनों ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहे हैं कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है और एक ही लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। ये एक लाइन है और इसके अलोंग वो मूव करते हैं, स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ से आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ से आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और मास सेम है और वेलोसिटी भी दोनों का सेम दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ये समझना है आपको कि दोनों का डायरेक्शन वेलोसिटी का अलग अलग है। इसका डायरेक्शन ये है, इस तरफ है, और इसका डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है। सो यू विल टेक वन ऑफ देम with a negative sign. Okay, so we have taken this u1 is equal to 2.5 meter per second and u2 will be with a negative sign minus 2.5 meter per second. Either you can take this velocity with a negative sign or this velocity. दोनों में से किसी एक को आपको वेलोसिटी नेगेटिव साइन के साथ लेना होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, कोलाइजन के बाद में उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, हमें मालूम है कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है। कंजर्वेशन लॉ कहता है सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलाइजन शुड बी विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। ठीक है, तो कोलाइजन के बाद में सिर्फ एक सिंगल वेलोसिटी है क्योंकि दोनों बॉडी जॉइंट हो जाती हैं। जब दोनों बॉडी जॉइंट हो जाती हैं तब उस केस में वहां पर v1 v2 नहीं लेंगे बल्कि वो दोनों बॉडी एक सिंगल वेलोसिटी से मूव करती हैं जब जॉइंट हो जाती हैं। तो हियर दीस टू बॉडीज कोलाइज टू ईच अदर एंड जॉइन टुगेदर एंड मूव्स विद द सेम वेलोसिटी।
तो उस वेलोसिटी को आपको निकालना है यहाँ पर कि वो वेलोसिटी कितना होगा एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन है, मासेस गिवन है और इनिशियल वेलोसिटीज आपको दोनों का दे रखा है। मासेस क्या है 1.5 कॉमन है मास, ठीक है, मास सेम है ना, तो मास को हम ठीक है आउटसाइड ले लेंगे 1.5, हालांकि वेलोसिटी भी सेम है तो मैंने 1.5 को आउटसाइड लिया है एंड 2.5 माइनस 2.5, ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से मासेस यहाँ 1.5 प्लस 1.5 इनटू v, ठीक है। तो फाइनली ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका, ये फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। यानी कि दो जो बॉडी इस तरह से मूव कर रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों बॉडी मूव करती हुई आ रही थी दूसरे के, जैसे ही वो कोलाइड होती हैं तो कोलाइड होने के बाद में दे स्टिक टुगेदर एंड दे विल नॉट मूव एक्चुअली, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी आपको यहाँ 0 मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाई ए हॉकी स्टिक so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in motion of the hockey ball by the force applied by hockey stick. Clear students, what you have given in this question, you have given mass of hockey which is you have given what? You have given the mass of hockey ball which is 200 gram, converted into kilogram, it becomes 0.2 kilogram. Clear? And the other things you have given here, this hockey ball moving with initial velocity 10 meter per second. Clear? When this hockey ball struck by a hockey stick, okay, तो the direction of hockey ball will change actually, क्योंकि जब आप जब हॉकी बॉल जब हॉकी स्टिक से स्ट्रक करेगी एक्चुअली, तब उस केस में क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, ठीक है, और हिट करने के बाद में उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया। तब उस केस में आप जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी, उस फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर या 10 मीटर पर सेकंड से वो इस डायरेक्शन में आ रही थी और ठीक है हिट होने के बाद में उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन माइनस के साथ आप लेंगे उस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू, तो इट विल बी v इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ओके, स्ट्राइक 1 मिनट। Now calculate the change of momentum occurred in motion of the hockey ball. यहाँ पर आपको change in momentum find करना है। So students, these are the things you have given this question. You have given the mass of the hockey ball which is 200 gram converted into kilogram. You have given initial velocity with which this hockey ball is coming actually 10 meter per second, and after struck actually, after hitting, the direction of velocity will be changed and it becomes v is equal to -5 meter per second. Now what will be initial momentum? Initial momentum will be mass into initial velocity. देखो मास तो सेम रहेगा, हिट होने के बाद भी मास उसका सेम रहेगा, हॉकी बॉल का मास चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ चेंज हो रही है, तो मास m into u हो गया, ठीक है। तो मोमेंटम कितना आ गया आपका, मास इज 0.2 into u is 10, it becomes 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम का यूनिट होता है इस पॉइंट, ठीक है, मोमेंटम का यूनिट है, क्योंकि किलोग्राम मास का यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का है, सो इट बिकम्स 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू m into v, ठीक है। तो मास कितना है इसका 0.2 एज इट इज रहेगा, v चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है और ये डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो -5 है, इट बिकम्स -1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम बिकम्स p1 minus p2, सो इट विल बी p1 is 2 and p2 is माइनस साइन एज इट इज है, और p2 की वैल्यू विद अ नेगेटिव साइन है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो द फाइनल वैल्यू विल बी 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी अदर प्रॉब्लम्स जो है वो आप कोशिश करिएगा, ठीक है, जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स थी मैंने वो आपकी समझा दी हैं, और अगर किसी और क्वेश्चन में जो मैंने छोड़े हैं 1-2 क्वेश्चन, अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम है आपको कोशिश करिएगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी ओके पर्सनली ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू सो मच।